Hello students. In complex number we already discussed the modulus and the other things of introductory as introductory part of the complex number. Now next our topic is argand plane or complex plane. Okay? We already know in the quadratic coordinate geometry we have Cartesian plane. Okay, in Cartesian plane we have x and y axis. The x axis is the horizontal line and y axis is the vertical line. Where they intersect each other, that point is called origin, and it divides the Cartesian plane into four equal parts, and that is called first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. In the first quadrant, if a point is lies like point A, so its x coordinate and y coordinate both are positive. So 2 4 is lies in the first quadrant. If the x coordinate is negative and y coordinate is positive, that lies in second quadrant. If both the coordinates are negative, that lies on the third quadrant, and if x coordinate is positive and the y coordinate is negative, it lies on the fourth quadrant. Okay, so this is the Cartesian plane. Okay, now our topic is argand plane. Argand plane means the plane where the complex number are represented. जब हम complex number को represent करेंगे तो उसको हम argand plane कहते हैं. जैसे देखिए ये argand plane x and x dash is a horizontal line and y dash is a vertical line and they intersect at point O. xy is lies on the first quadrant, whose point P, whose coordinates are x and y. Every point in argand plane is represented by the polar complex number. Okay, like P अगर हम xy है तो वो P equals to x plus iy होगा. If another point which is lies on the second quadrant, so उसका real part negative होगा, imaginary part positive होगा. So it is lie on the second quadrant. So q is equals to minus a plus ib. इसी तरह से r है minus c comma minus d. X real part is negative, imaginary part is negative, so that lies on the third quadrant. And if the real part is positive and imaginary part is negative, so it lies on the fourth quadrant, जैसे e comma minus f है. If a point or the complex number lies on x dash, जैसे हमें पता है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो x कॉमा 0 होगा. सो दैट रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैपिटल x प्लस i0. इसी तरह से v है 0y होगा तो उसमें रियल पार्ट 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा. सो इमेजिनरी पार्ट है तो v इक्वल्स टू 0 प्लस iy हो जाएगा. सो अगर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, सो थर्ड क्वाड्रेंट में. और रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा तो दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट. एंड आपको और ए पॉइंट और ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, so that is represented x plus i0, and if a on y axis 0 plus iy होगा. x dash is a real axis, x dash को हम real axis बोलते हैं and y dash को imaginary axis हम बोलते हैं. ओके जैसे वहाँ x axis y axis बोलते थे, यहाँ real axis and imaginary, मतलब x डैश पे हम रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और y डैश पे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज OP. अब लेट O इज द ओरिजिन और x डैश है रियल, P इज ए पॉइंट विच लाई ऑन द argand plane xy. So Pxy, this represent as the complex number x plus iy. So OP equals to what? We know the distance formula, that is under root x square plus y square, which is equals to the modulus of z. So
ओ से पी के बीच का डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ जेड होता है, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब जैसे यहाँ है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, सो p रिप्रेजेंट एक्स वाई है, तो उसका z को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी का कॉन्जुगेट z बार इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई है, सो x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, द सेम तो उनके बीच का वो उसका जस्ट मिरर इमेज होगा, एक सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस। तो पी क्यू जितना डिस्टेंस एक्स रियल एक्सिस से पी क्या होगा वही डिस्टेंस क्यू का होगा, सो पी क्यू इज द इमेज ऑफ दैट वन। ओके, क्यू इज द इमेज ऑफ पी, क्योंकि जस्ट कॉन्जुगेट है तो वो इमेज है। क्यू इज द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई ऑन द रियल एक्सिस। अब डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज z1 माइनस z2। अगर आप p को z1 माने और q को z2 माने तो वो पी क्यू द डिस्टेंस इज z1 माइनस z2। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट z1 इज x1 प्लस आई वाई वन, z2 इज x2 प्लस आई वाई टू। ये दो पॉइंट p और q है, p है x1 y1, q है x2 y2। तो z1 माइनस z2 अगर आप करेंगे तो x1 माइनस x2 प्लस आई y2 y1 माइनस y2। मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉडुलस। अब पी क्यू अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे पी क्यू के बीच में, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10 में पता ही था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। तो आप देख रहे हो कि पी क्यू का वही वैल्यू आ रही है जो z1 माइनस z2 की आ रही है, सो पी क्यू इज इक्वल्स टू z1 माइनस z2। मतलब दो अगर पॉइंट आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन पे पता है तो उनके बीच का डिस्टेंस, उनके जो दोनों हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं z1 एंड z2, उन्हीं के डिफरेंस का मॉडुलस के इक्वल होता है। दैट इज द दिस वन is by the distance formula. Okay, now the main topic is polar representation of a complex number. Now once again there is a real axis and imaginary axis. O is the origin point, P is a point which is lies on the complex plane whose coordinates are x and y. It represents a complex number x plus iy. Okay, and we know that OP is equals to what? मॉडुलस ऑफ z। अभी हमने देखा था कि OP जो है वो मॉडुलस ऑफ z होता है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। उसी को हम द लेंथ ऑफ OP इज r, उसी को जब हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज r, दैट इक्वल्स टू सेल्ड है r, और द थीटा बी द एंगल विच OP मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। जो OP लाइन है वो जो एंगल फॉर्म कर रही है दैट इज थीटा, एंड द पोलर जैसे एक्स वाई इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, उसी तरीके से द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज आर थीटा। आर डिस्टेंस से रिलेट करता है, थीटा बाय द एंगल। इफ O इज द ओरिजिन ऑफ द पोल एंड पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस एज इनिशियल, तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें देखिए कि OA क्या है, x है, एंड PA y होगा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करें इन ट्राइंगल OPA, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज OA एंड हाइपोटेन्यूज R, तो यहाँ रखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू x अपॉन R, R इक्वल x इक्वल्स टू R cos थीटा। इसी तरह sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपने y माना हुआ है और हाइपोटेन्यूज r है तो y इक्वल्स टू r साइन थीटा। तो x की वैल्यू r cos थीटा हो गई, y की वैल्यू r साइन थीटा हो गई, z इक्वल्स टू व्हाट x प्लस आई वाई। एक्स के प्लेस पे r cos थीटा रख दीजिए, y के प्लेस पे r साइन थीटा रख दीजिए, तो r cos थीटा प्लस r साइन थीटा, r कॉमन, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ a complex number in the polar form, r cos theta plus I sin theta, where theta is the angle which OP makes with the positive direction of x axis. Okay, now
सो आर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड, वी नो दैट, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मॉडुलस ऑफ जेड, एंड थीटा जो एंगल निकल के आता है इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड, या स्मॉल फॉर्म में उसे ए आर जी ऑफ जेड भी डिनोट करते हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखें, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स वाई अपॉन एक्स कर देंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। तो दैट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड। नाउ फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो, देयर करस्पॉन्डिंग ओनली वन वैल्यू ऑफ थीटा between 0 theta is lie between greater than 0 less than 2 pi, where however any interval of length 2 pi फॉर एग्जाम्पल, मतलब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ प्रिंसिपल आर्गूमेंट हम देखते हैं, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है माइनस पाई टू पाई के बीच में, माइनस पाई से छोटा बड़ा और पाई से इक्वल या पाई के बराबर, ओके, से छोटा, ओके। तो यहाँ वी कैन सच है थीटा जो है, थीटा इज़ द आर्गूमेंट, वी नो दैट, तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो माइनस पाई से पाई के बीच में होगा, मीन्स माइनस पाई इज लेस देन थीटा लेस देन आर इक्वल्स टू पाई। अब उसको फिगर से देखें, जो फिगर फर्स्ट है आपका है ओ पी एंड एंगल इज थीटा, एंड यू नो दैट दिस एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट इज़ लेस देन पाई। इन अगर ओ पी सेकेंड फिगर में देखें वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो वो मोर देन पाई बाई टू होगा बट लेस देन पाई होगा। थर्ड फिगर में आप जब जाएंगे तो थीटा जो आपका हो जाएगा वो मोर देन पाई बट लेस देन टू पाई हो जाएगा। फोर्थ फिगर में आपका हो जाएगा लेस देन टू पाई बट मोर देन थ्री पाई बाई टू, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया आपका। लेकिन अभी हमने बताया कि प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में होती है, तो थर्ड फिगर है और फोर्थ फिगर है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एंगल आपका पाई से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम ये फिगर लेते हैं जो नीचे आपका है। फर्स्ट और सेकंड फिगर तो सेम एज द फर्स्ट एंड सेकंड फिगर ऑफ 5.5, बट क्योंकि माइनस पाई से पाई के बीच में है तो इसलिए हम जो थर्ड फिगर, जब कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो हम उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को डिनोट करेंगे, मतलब नेगेटिव ऑफ एंगल निकालेंगे। वो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा तो थीटा को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में करेंगे, ओके। तो इस तरीके से हम एंगल्स को, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो एंगल होगा द आर्गूमेंट इज़ पॉजिटिव, बट इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ एंगल आपका या आर्गूमेंट जो होगा वो नेगेटिव लेके चलेंगे, ओके। कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे वो अभी ध्यान देंगे। तो ये जो एंगल्स निकालते हैं वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल है, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस 1 प्लस आई रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। अब आप ध्यान से देखें, अगर कंपेयर करें, रियल पार्ट इज़ 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ रूट 3, मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों आपका पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में द कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो p जो है वो आपका 1, है। अब अगर आप स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर करें, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, तो आर कॉस थीटा आपका रियल पार्ट 1 है तो आर कॉस थीटा 1 हो गया, और रूट 3 आपका y है तो आर साइन थीटा रूट 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, एडिंग बोथ स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट आर स्क्वायर इन द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 4, सो आर इक्वल्स टू 2, क्योंकि आर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, आर तो पॉजिटिव ही रहेगा। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1 इक्वल्स टू आर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर की वैल्यू 2 आई है तो कॉस थीटा इज 1 अपॉन 2, साइन थीटा भी आर साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 3 तो साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2, देन थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको पता है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज पॉजिटिव और पाई से छोटा है भी, तो थीटा आपका पाई बाई 3 हो जाएगा। तो z इक्वल्स टू 2 आर
मतलब आपको याद है आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, तो 2 आर की जगह पे 2 और कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। दैट इज़ द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द दिस नंबर। एक और देखिए, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। अब अगर आपको इस तरीके से है, जहां आपको डायरेक्ट नहीं दिया, तो सबसे पहले तो आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, 1 माइनस आई रूट 3, 1 माइनस आई रूट 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4 प्लस आई 4 रूट 3। अब फिर आप देखें इसको, -4 रियल पार्ट इज नेगेटिव एंड 4 रूट 3 इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव। तो अगर रियल पार्ट नेगेटिव होता है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है, मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एंगल आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपका r cos थीटा इक्वल्स टू -4, r sin थीटा इक्वल्स टू 4 रूट 3, दोनों को फिर वही स्क्वायरिंग एंड एडिंग, r ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 16 प्लस 48, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 64, आर इक्वल्स टू 8 पॉजिटिव ही रखेंगे। कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। और आपको पता है कि इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, π/3। ठीक है, लेकिन कॉस भी नेगेटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो पाई माइनस समथिंग रखेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस π/3, तो दैट इज़ 2π/3 हो जाएगा। तो थीटा आपका 2π/3 हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म हो जाएगा 8 इन द ब्रैकेट cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। अब एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। z इक्वल्स टू -1 माइनस आई रूट 3, दैट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। अब यहाँ हमें कह रहा है कि मॉडुलस निकालिए और उसका आर्गुमेंट निकालिए। तो फिर कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। r cos थीटा -1 हो गया, x आपका नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो मतलब p इज़ इन द थर्ड क्वाड्रेंट है, तो r तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। r स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो r ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, r इक्वल्स टू 2। cos थीटा इक्वल्स टू r cos थीटा इक्वल्स टू -1 है, तो cos थीटा इक्वल्स टू -1/2 और साइन थीटा इक्वल्स टू -√3/2, दैट इज़ -π/3। क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा उसको हम नेगेटिव ही रखेंगे, तो माइनस और पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से छोटा होगा, लेकिन π/2, तो आपका जब भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो वहाँ पाई माइनस सम, जो अभी एंगल आपका आया है वो लिखेंगे। π/3 आपका आया है, माइनस तो बाहर ही रखेंगे, तो पाई माइनस π/3, तो दैट इज़ -2π/3 एंड दैट्स योर आर्गुमेंट ऑफ दिस नंबर। ओके, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, -1 माइनस आई। अब आप देखें दोनों नेगेटिव हैं, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। r cos स्क्वायर थीटा, तो r आपका √2 हो गया, cos थीटा इज़ -1/√2, साइन थीटा इज़ -1/√2, दैट इज़ -π/4, ऑब्वियसली -π/4। लेकिन क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है या p थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मैंने भी बताया जो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा वो माइनस ऑफ पाई माइनस सम एंगल हो जाएगा, तो -π माइनस π/4 कर देंगे, तो दैट इज़ -3π/4 हो जाएगा। तो r cos थीटा, तो r के जगह पे √2 और cos की जगह पे थीटा की जगह पे -3π/4 प्लस आई साइन -3π/4 करेंगे, तो दैट्स द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। इसी तरीके से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पोलर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो वहाँ जब आप थीटा निकालेंगे तो वो जो नेगेटिव ही आएगा, तो वो माइनस सम जो भी आ जाए वो उसको उसी फॉर्म में रख देंगे, क्योंकि वो π/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी आएगा वो नेगेटिव में ही रखा जाएगा। तो इसलिए दीज आर द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। So I hope you understand how to represent the complex number into polar form. If you have any doubt, then you can ask. Thank you.